हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। स्टेट एंड द नेशन। द स्टेट एंड द नेशन हियर। बाय द नेशन एज यू नाउ वी आर मीन टू द हिस्टोरिकली constituted stable community of people formed on the basis of a common language, territory, economics, life, and as a physiologically here, there is a make to the manifested in a common culture. Nation is a blastochellis say means the scientist here the blastochellis say a union of the masses as a man bound together, especially by the language and custom into the common civilization, which is to give them a sense of unity. A nation is a culturally homogeneous social group. There is a one fact: the nation cannot. There is a concept of people who are the conscious of their historically and cultural background, and who is a wish to the preparatures. There is a background is the politically within the framework of a state. The state is a now is a people is organized for the law within a defined territory. It is a way the surrogate and supreme internally and independent externally. The nation is a group of people is a physiologically bound together with the sharing common joy and sorrow. The destinations between the state and the nation is spent under this condition. There are destination of the state and nations. The first is the nation and the state is the destination is the entities. A nation may be not be away a state. India was not a state before August 1947. A state may not be away to the nations. Austria-Hungary was a state but not a nation before the World War I. Because the heterogeneous is a people did not form a culturally homogeneous people. There is the most important here. Next, the state is a state because it is a survivant. And there are nations that not be a state if they are not a survivant, and survivantry is the chiefly is a characteristic of a state. It is not a features of their nation. A nation become a nation state when the nation attend to the statehood. The state is a political concept while the nation is a culture and psychologically body. I say the nation is a primary culture and only incidental political. And the what is a mean is that is a nation is not a political concept, it is only spiritual. And the next here D is a law bind the people together in a state, and sentiments and the emotion bind to the people in a nation. The unity of the state is a way external. The unity of the nation is external. In a case of the state, unity is imposed. It comes from to above through the law. In the case of the nation, unity is come from within the through the emotion. And the next here, there is an element of force connected with the state. The state's law is a binding. There is a correcons and exercised by the state if it is authority is a decided. In the case of their nation, there is an element of precautions. And the next here, the elements of the state are defined as a population, fixed territory, government, and sovereignty. The element of nation are not be defined. Somewhere is common language help the constitution of a nation, and somewhere is the common race make a nation common religion. For example, was affected is making Pakistan as a nation. It was a common language in the case of the United States and the nation, whereas it is a common heritage, and that made India is a nation. A state may be a larger than a nation. The format to the USSR had within the more than 100 nationality. Unconventionally, there a nation may be a larger than a state, or nationality may be separate over to two states. The Koreans is a nationality is a separate over two states, North Korea and South Korea. हम जो आज बात करने जा रहे हैं राज्य और राष्ट्र के लिए, देखिए राज्य और राष्ट्र में जो है अंतर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र के अंदर जो है राज्य भी होगा, लेकिन कई जगह पे जो है स्टेट मिलके जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र एक अर्थ है जो ऐतिहासिक रूप से संगठित लोगों का एक समुदाय है जो एक सामान्य भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचारों के कारण एक ही
जो है संस्कृति में अभिव्यक्त होता है। यानी वशिष्ठ के अनुसार ये बात साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्र लोगों का वह समूह है जिसे विशेष भाषा, रीति रिवाज और सामान्य सभ्यता के कारण आपस में बंधे हुए सदैव रहते हैं, जो उनमें एकता की भावना से सदैव बांधता है। यानी हम जो हैं सभी के सभी एक राष्ट्र है और हमारे अंदर जो है राष्ट्रता की भावना होनी चाहिए। हमारा एक राष्ट्र है, हम राष्ट्र के सदस्य हैं और हमारे अंदर ये भावना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हो कि आप भी एक राष्ट्र के सदस्य हो और आप भी राष्ट्र हो। राष्ट्र संस्कृति के रूप में समृद्ध सामाजिक एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र शब्द का अर्थ है ऐसे लोगों से है जो अपनी ऐतिहासिक संस्कृति विरासत के प्रति सजग है और इसे राजनीतिक रूप से जो है बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था के अंदर। तो राष्ट्र शब्द का अर्थ ही यही होता है कि अपनी इतिहास, संस्कृति, विरासत को हर कोई व्यक्ति जो है संजोए कर रखना चाहता है, जो आने वाले जो है पीढ़ी उसको देख सके और समझ सके। जैसे कि हम जानते हैं कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का कानून के दायरे में एक व्यवस्थित समूह है। यह सदैव आंतरिक मामलों में जो है सर्वशक्तिमान और बाहरी मामले में सदैव स्वतंत्र भी होती है। राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो मनोवैज्ञानिक रूप से सदैव बंधे हुए रहते हैं, तो सामान्य रूप से सुख और दुख बांटते रहते हैं। यानी जो है शहरों जो होता है आपस में जो है एक दूसरे से देते और लेते रहते हैं। राज्य और राष्ट्र के बीच विभिन्न प्रकार से भेद स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई है जो कि राज्य और राष्ट्र के बीच कुछ अंतर को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। राष्ट्र और राज्य दो पृथक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्र सदैव एक राज्य नहीं हो सकता है। देखिए राष्ट्र जो है सदैव एक राज्य नहीं हो सकता है। कहते हैं अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। ठीक है, भारत जो पहले एक राज्य नहीं था, उस समय अंग्रेजों की राज्य थी और उसने सारे देश को एक बना रखा था। राज्य सदैव एक राष्ट्र नहीं भी हो सकता है। प्रथम विश्व से पहले ऑस्ट्रेलिया और हंगरी एक राष्ट्र था, परंतु राष्ट्र नहीं भी था, क्योंकि यहाँ के जो है विजेता लोग सांस्कृतिक रूप से जो है समृद्ध समूह का निर्माण नहीं करते थे। उसी प्रकार अगर हम अगली बात देखें तो कहते हैं राज्य एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। यानी देखा तो संप्रभुता इसके अंदर होता है। राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि वह संप्रभु नहीं है। संप्रभुता का राज्य का जो है प्रमुख अंग माना जाता है। यह एक राष्ट्र का गुण भी होता है। आपने देखा होगा सर्वेगेंटी जो होती है वो किसी भी राज्य के लिए प्रमुख गुण होती है और ये राष्ट्र का एक गुण नहीं है। कोई राष्ट्र तब राष्ट्र राज्य बन जाता है जब उसे राज्य की दर्जा मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई हमारे देश में भी जो है स्वतंत्रता के बाद भी जो है राज्य जो है अलग अलग राज्यों में कन्वर्ट हुआ है और उसको अलग राज्य की दर्जा दी जाती है। कहते हैं जो यहाँ पर अगर देखें आम आदमी पार्टी भी जो है दिल्ली को एक अलग राज्य की दर्जा मनवाने में लगा हुआ है, जो कि आज कुछ ही दिन पहले का ही न्यूज़ ये देखने को मिला था। राज्य राजनीतिक संकल्पना है जबकि राष्ट्र एक जो है सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्र एक राजनीतिक संकल्पना नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें साफ बात बताई जा रही है कि देखिए राज्य एक का समूह हो सकता है और इसको विभक्त भी किया जा सकता है। यानी एक राज्य को दो राज्यों में बनाया भी जा सकता है। जैसे आपने बिहार को भी देखा होगा कि झारखंड में दो भागों में बट गया, हैदराबाद भी देखे होगे तेलंगाना में बट गया, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर उसको लद्दाख में दो भागों में इसको बांट दी गई। तो ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही बात यहाँ पर भी आ रहा है। कहते हैं राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में सदैव बंधे होते हैं और जो है भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है। यानी हम कहते हैं एक राष्ट्र के होते हैं तो राष्ट्र में जो भी प्रॉब्लम आती है हम सब मिलजुल के जो है इसको सामना भी करते हैं। कभी दुख में कैंडल जलाते हैं तो कभी दुख में जो है हम लोग जो है आंसू भी बहाते हैं और कभी कभी सरकार के खिलाफ जो है हम धरना भी देने के तरपत्ते रहते हैं। अगर आप धरना न भी तो फिर भी राजनीतिक नेता जो दूसरे पार्टी के होते हैं वो आपको उकसाकर जरूर इस कार्य के लिए संग्रह कर लेते हैं। राज्य की एकता सदैव बाहरी होती है, राष्ट्र का एकता अनंत होती है। राज्य सदैव में एकता को आरोपित किया जाता है और यह कानून द्वारा उत्पन्न होती है। राष्ट्र के सदैव में एकता संभावनाओं द्वारा सदैव उत्पन्न किया जा सकता है। उसके पश्चात है राज्य के एक और घटक है बल का। देखिए राज्य का एक और घटक जो है बल। कहते हैं बल ही राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा घटक माना जा सकता है। राज्य के नियम एक बंधन की तरह है। यदि राज्य के नियम का पालन नहीं होता है तो वो दमनकारी शक्ति का प्रयोग भी करता है। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझबूझ एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जा सकता है। बात अगर हम करें अगले पॉइंट को तो ये साफ शब्दों में होता है कि
कहते हैं राज्य का घटक निश्चित होती है, जैसे जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, यानी इज अ सबगेंटिस। कहते हैं राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते हैं, कहीं पर राष्ट्र का निर्माण सामान्य भाषा के कारण होती है, कहीं पर सामान्य कुल के कारण होती है, सामान्य धर्म होने के कारण भी। जैसे पाकिस्तान एक राष्ट्र बन गया था क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का एक पार्ट था, लेकिन जब जब भारत आज़ाद हुआ तो ये भाषा के रूप में कि हम लोग कहते हैं मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो धर्म के रिगार्डिंग जो है इसको अलग कर दिया गया। सामान्य भाषा का एक मुख्य कारण था अमेरिका के राष्ट्र बनने में, जिसमें सामान्य वितरण से भारत को एक राष्ट्र बनाया गया। बात करें अगर हम अंतिम पॉइंट का, तो यही बात आती है कि राष्ट्र जो है, राज्य एक राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। देखिए राज्य जो है एक राष्ट्र से भी बड़ा हो सकता है। जब अगर देखें हम पूर्व सोवियत संघ जैसे 100 से भी अधिक राष्ट्रता का समूह था। अगर आप यूएसएसआर के बारे में जानते भी होंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि यूएसएसआर जो था सबसे बड़ा जो है राज्य था, यानी राष्ट्रता का समूह था जिसमें बहुत बड़ा माना गया। लेकिन जैसे ही विखंडन हो गया, सभी राज्य जो थे अलग अलग हो गए, अपना खुद ही जो है अपना सरकार बना लिया। इसके विपरीत राष्ट्र एक राज्य से बड़ा हो सकता है। एक राष्ट्रीयता दो से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। कोरियन राष्ट्रता 2 राज्य उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में फैली हुई है। अगर कोरियन राष्ट्रता देखो आप तो ये जो है 2 स्टेट में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो आपको पता ही होगा उत्तर कोरिया होता है और दूसरा जो होता है दक्षिण कोरिया में फैला हुआ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक था जिसमें हम बहुत कुछ जाने और समझे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिए। साथ में भूलना आपको ये बात भी नहीं है कि जितना हो सके इसको शेयर भी करना है, दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प भी करना है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। सिर्फ व्हाट्सअप पे आपने क्या करना है, इसको स्टेटस के रूप में पेस्ट करना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो अपने मोबाइल में जो है लिंक को जरूर इसको सेव कीजिए। इसके सेव करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ही पड़ेगा, जिससे जो है आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओगे।